نواز شریف کے بازو میں درد، ذاتی معالج سے چیک اپ ضروری۔ ڈاکٹر کوٹ لکھپت جیل کے باہر انتظار کرتے رہے، ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ مریم نواز کا ٹویٹ، لیگی قائد کو کچھ ہوا تو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے۔ احسن اقبال کا رد عمل۔ ان کے معالج جو ڈاکٹر عدنان ہیں، انہوں نے جیل انتظامیہ سے آج شام 5:38 میں ان کے میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا 5:54 پہ ان کو واپس بتایا گیا کہ جی آپ کل تشریف لے آئیے۔ 5:38 پہ انہوں نے ریکویسٹ کی، 5:54 پہ ان کو بتایا گیا۔ ڈاکٹر عدنان کو آ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جیل کے ڈاکٹرز نے نواز شریف کا چیک اپ بھی کیا۔ ذاتی معالج کو روکنے کی باتوں کا مقصد ہمدردی حاصل کرنا ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل کا رد عمل۔ بلاول بھٹو، مراد علی شاہ کا ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی نے یاد دہانی کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا۔ 1 ہفتہ انتظار کرنے کے بعد قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ جس قسم کے بیانات ان کے وزراء سندھ حکومت کے خلاف، سندھ کے لوگوں کے خلاف دے رہے ہیں، سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے، اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ اگر وفاقی حکومت ای سی ایل پہ نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے۔ ای سی ایل پر بیان بازی، وفاق و سندھ آمنے سامنے۔ جیالو کی کھلاڑیوں کے سندھ میں داخلے پر پابندی کی تڑی۔ علیمہ خان کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جائے، سعید غنی کا مطالبہ۔ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں۔ داخلہ پاکستان ہے، کوئی کسی کا داخلہ بند نہیں کر سکتا۔ سندھ میں داخلہ بند کرنا ناممکن، علیمہ خان ہو یا کوئی اور، احتساب یکساں ہوگا، وزیر پیٹرولیم کا جواب۔ آلے زرداری اور جیالے وزراء کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ عدالت کے تحریری حکم تک ای سی ایل سے کسی کا نام نہیں نکلے گا، فیاض الحسن چوہان کا اعلان۔ کاغذوں میں کام ہی کام، حقیقت میں صرف آرام۔ بلاول بھٹو سندھ کابینہ پر برہم۔ پی پی چیئرمین کی زیر صدارت 8 گھنٹے طویل اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی شرکت۔ جسے کام نہیں کرنا وہ گھر چلا جائے، بلاول نے صاف صاف بتا دیا۔ چینی کونسلیٹ پر حملہ بھارت نے کرایا، را اور افغان خفیہ ایجنسی ملوث۔ منصوبہ بندی افغانستان اور کوئٹہ میں ہوئی، اسلحہ ٹرین کے ذریعے لا کر بلدیہ ٹاؤن میں رکھا گیا۔ دہشت گردوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوائے۔ منصوبہ ساز اسلم اچھو پڑوسی ملک میں مارا گیا۔ 5 دہشت گرد گرفتار ہوئے، کراچی پولیس چیف کی بریفنگ۔ کراچی میں سپاہ سالار سے تاجروں کی بیٹھک۔ ملکی صورتحال، امن و امان کی بہتری پر تبادلہ خیال۔ محفوظ ماحول کی فراہمی پر اظہار تشکر۔ کاروباری برادری ملک میں معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرے، جنرل قمر جاوید باجوہ کی گفتگو۔ پاکستان کی بڑی جیت، بھارت نے اصولی موقف مان لیا۔ آبی تنازع میں بڑی پیش رفت، ہندوستان سندھ طاس معاہدے کا معاملہ حل کرنے پر آمادہ۔ چناب بیسن میں منصوبوں کے معائنے کی اجازت، فیصل وابڈا کی 3 رکنی ٹیم کو روانگی کی ہدایت۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہمیں پورا پانی نہیں مل سکتا، یہ کمی ڈیم ہی پوری کر سکتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آبی ذخائر تعمیر نہ کر کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، چیف جسٹس ثاقب نثار کا انٹرویو۔ زیر زمین پانی کے استعمال پر 1 روپیہ فی لیٹر قیمت عائد کرنے کا حکم۔ رقم دیامر بھاشا اور محمد ڈیم کی تعمیر پر خرچ ہوگی، سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ منرل واٹر اور مشروبات کمپنیز کو سالانہ 10,000 درخت لگانے کا بھی حکم۔
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اعزاز میں الوداعی تقریب، نامزد چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی شریک۔ ظلم اور کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ناانصافی کا نہیں، کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی، جسٹس ثاقب نثار کا خطاب۔ ظلم اور کفر کا معاشرہ تو برقرار رہ سکتا ہے، وہ معاشرہ نہیں جہاں پہ انصاف میسر ہے۔ کبھی میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کی اور ڈومین میں انٹرفیئر کروں۔ اپوزیشن والے بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں، وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے، اور عوام دیکھ لے آپ کے سامنے ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ اپوزیشن ہمارے ایسے قوانین کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بھی پاس نہیں کرے گی۔ قانون سازی کے معاملات حکومت بے بس، اپوزیشن کچھ بھی نہیں کرنے دے رہی۔ وزیر قانون کی دنیا نیوز سے گفتگو، حزب اختلاف نیب کو کمزور کرنا چاہتی ہے، فروغ نسیم کا الزام۔ پیپلز پارٹی آج کوٹری میں عوامی طاقت دکھائے گی۔ سچل سرما اسٹیڈیم میں اسٹیج تیار، کرسیاں بھی لگا دی گئی۔ بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ تحریک انصاف سے اتحاد عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا، معاملات اگر جوں کہ تو رہے تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے، میئر کراچی وسیم اختر کی دھمکی۔ تھوڑا صبر کریں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحت کے شعبے کی بہتری ترجیح قرار، صحت کارڈ کا دائرہ پورے صوبے تک بڑھا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا ٹاک۔ پنجاب میں اعلیٰ حکام کے رشتہ داروں کے لیے راہ ہموار کرنے کی تیاریاں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کمیشن کی تشکیل کا بل اسمبلی میں پیش، ریٹائرڈ جج سربراہ ہوگا، کمیشن کسی بھی افسر کے اثاثوں کی چھان بین کر سکے گا۔ راولپنڈی میں سوائن فلو کا پہلا شکار، ہولی فیملی اسپتال میں زیر علاج اٹک کی رہائشی مریضہ جاں بحق۔ پی آئی اے کا مرمتی شعبہ حویلیاں طیارہ حادثے کا ذمہ دار، ایک انجن کے پاور ٹربائن کا بلیڈ دوران پرواز اتر گیا، دوسرا زیادہ استعمال سے خرابی کا شکار ہوا، بلیڈز بر وقت مرمت نہیں کیے گئے، تحقیقاتی رپورٹ دنیا نیوز پر۔ مرمت کے طریقہ کار پر فوری آڈٹ ناگزیر قرار۔ لاہور میں ملتان روڈ سبزی منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ریڑھی باندھ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق، انتظامیہ کارروائی چھوڑ کر فرار، آڑتیوں کا احتجاج، لاش رکھ کر سڑک بلاک کر دی۔ کراچی میں چینی باشندے کو زخمی کر کے لوٹنے والے ملزم اندرون سندھ سے گرفتار، ایس ایس پی ساؤتھ کا علی رضا آبدی قتل کیس کی تحقیقات میں ناکامی کا بھی اعتراف۔ بلتستان یونیورسٹی اسکردو کے طلباء اور اساتذہ کا آئی ایس پی آر کا دورہ، میجر جنرل آصف غفور سے ملاقات، امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو خراج تحسین، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کردار پر بھی شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف سے پاکستان میں افغانستان کے نئے سفیر شاکر اللہ عاطف کی ملاقات، علاقائی سیکیورٹی اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال، سپاہ سالار کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے دورے پہ آئے افغان وفد کی آفتاب شیرپاؤ سے ملاقات، قومی وطن پارٹی کے چیئرمین کا افغانستان میں استحکام کے لیے امن مذاکرات پر زور، دہشت گردی علاقائی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار۔ ملک کے اکثر علاقوں میں ٹھنڈ کے ڈیرے، مری اور گلیات میں پھر برف باری، پارا گرنے کے باوجود سیاحوں کی خوب موج مستی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے، ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو سارا دن انتظار کرایا لیکن ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس پر مریم نواز نے اپنے والد کی صحت بارے شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ جبکہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر شہباز گل نے مریم نواز کے اس ٹویٹ کو غلط قرار دیا ہے۔ ارسلان رفیق بھٹی کی رپورٹ۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब, ज़ाती मालिज डॉक्टर अदनान पहुंचे जेल में मुलाकात के लिए। कानून के मुताबिक दरखास्त की, सारा दिन इंतजार की घड़ियां खत्म न हुई। शाम को जवाब दे दिया कि डॉक्टर साहब मियां साहब से नहीं मिल सकते। मियां नवाज शरीफ ने जुमेरात के रोज अहले खाना को बताया कि इनके जिस्म और बाजुओं में दर्द है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट के जरिए अपने वालिद की नासाज तबीयत बारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मरियम का कहना है कि इनके वालिद की बीमारी को डॉक्टर अदनान बेहतर समझते हैं, इनको मिलने की इजाज़त ना देना जुल्म है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मरियम नवाज ने गलत ट्वीट किया। डॉक्टर अदनान ने शाम को दरखास्त दी, जिस पर जेल हुकाम ने मुस्बत जवाब देते हुए उन्हें हफ्ते के रोज मिलने की इजाज़त दे दी है। 5:38 पे उन्होंने रिक्वेस्ट की, 5:54 पे उनको बताया गया और तकरीबन 6:11 पे उन्होंने आगे से कहा जी थैंक यू सो मच, प्रोफाउंड रिगार्ड्स, मीन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हमारी प्रपोजल कि हम कल मिलेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब और रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने ज़ाती मालिज को मियां नवाज शरीफ से मिलने की इजाज़त न मिलने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और सलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। खुर्शीद शाह ने कहा है कि उम्मीद है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1-2 माह में जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने एक और बजट महंगाई के मारे आवाम के साथ जुल्म करार दे दिया। नवाज शरीफ को सजा दी है, वो केस बनता नहीं है और उसी पे जब आर्गूमेंट होगी तो उसका केस ख़त्म हो जाएगा, क्लीन चिट मिल जाएगा, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। नई टैक्सेस लगा के दिखाना चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट की तरफ से लगी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने की है, पार्लियामेंट से नहीं पूछा, ये पार्लियामेंट की तरफ लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत हैवी टैक्सेस डालने जा रहे हैं लोग। और अभी आपको अहम खबर दें, कागजों में काम ही काम लेकिन हकीकत में सिर्फ आराम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध काबीना पर बरहम नजर आए। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत 8 घंटे तवील इजलास हुआ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इसमें शरीक थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जिसे काम नहीं करना वो घर चला जाए। 8 घंटे तवील इजलास में मजीद क्या कुछ हुआ, मुनव्वर आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं, तफसीलात जान लेते हैं। मुनव्वर, वफाकी काबीना का और पंजाब काबीना का इजलास हुआ, उसमें वज़रा पास या फेल हो रहे थे, आज यहाँ कौन कौन फेल हुआ है? देखें, जो सिंध काबीना है उसमें अक्सरियत वज़रा पास होते दिखाई नहीं दिए आज बिलावल भुट्टो के सामने, और काफी बरहमी का इजहार किया बिलावल भुट्टो ने। खास तौर पर जो अहम महकमे हैं उनकी कारकर्दगी जो कागजों में नजर आई और जो ब्रीफिंग दी गई, बिलावल भुट्टो से मुतमईन नजर नहीं आए। खास तौर पर तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, फूड और जो सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी पर काफी बरहमी का इजहार बिलावल भुट्टो ने किया। इसके अलावा जो बहाने बनाए गए वज़रा की जानिब से और जो ब्यूरोक्रेसी पर जिम्मेदारियां कुछ डाली गई, उस पर भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर जिम्मेदारी न डाली जाए। जो वज़रा ब्यूरोक्रेसी को डील नहीं कर सकते वो वजारत छोड़ दें। कुछ जो वजीर थे उनकी कारकर्दगी के हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि कागजों पर नहीं अमली काम देखना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट के हवाले से कहा कि बसें सड़कों पर चलानी है, कागजों पर नहीं चलाएं और कोशिश की जाए कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। थर का जो फोकस था उस पर भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमली काम थर में ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना चाहिए और जो मुख्तलिफ कहर ज़दा इलाके हैं उन पर सेहत और तालीम और ग़िज़ाई जो किल्लत है उसको कम करने के लिए भी अमली इक़दाम करने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर आलम। एक और मामले से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL पर है। सुप्रीम कोर्ट का इस सिलसिले में हुक्म आ चुका है, लेकिन वफाकी काबीना की जानिब से एक नज़रसानी कमेटी बना दी गई है, लेकिन वाज़ेह तौर पर कहा गया कि तफसीली फैसला आने तक नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत हाल में जवाबी वार के लिए तैयार है। ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान को ECL पर डलवाने के लिए अदालत जाने का पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है और इसके साथ साथ परवेज खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन समेत दीगर को भी ECL पर डालने का मुतालबा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने वजारत दाखिला को याद दहानी के लिए दोबारा खत लिख दिया है। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी ने पहला खत 29 दिसंबर को लिखा था और अब एक और खत लिख दिया गया है। एक हफ्ता इंतजार के बाद जवाब न मिलने पर पीपल्स पार्टी अदालत जाएगी। और खबर यह है कि पीपल्स पार्टी आज कोटरी में अवामी ताकत दिखाएगी। सचल शर्मा स्टेडियम में स्टेज तैयार है, कुर्सियां भी लगा दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर जियालों का लहू गरमाएंगे। जलसे पर इंतजामिया भी हरकत में आ गई। शहर से कूड़ा साफ कर दिया गया है।
पीपल्स पार्टी आज करेगी पावर शो कोटरी में। सचल सरमस्त स्टेडियम में जलसे के लिए 7 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। कारकुनों के लिए हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई। बिलावल भुट्टो की आमद के पेश नजर शहर की किस्मत जाग उठी। बल्दिया का अमला हरकत में आ गया और शहर से कूड़ा करकट साफ कर दिया। जलसे की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो कोटरी में मुकम्मल किए गए मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि जुल्म और कुफ्र का मुआशरा चल सकता है लेकिन ना इंसाफी का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि कभी किसी के काम में मुदाखलत नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अलविदाई तकरीब में उनका कहना था कि आवाम को वो इंसाफ नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था। इंसाफ जिस माशरे में नहीं है, बकौल हजरत अली करम अल्लाह वजहू, जुल्म और कुफ्र का माशरा तो बरकरार रह सकता है, वो माशरा नहीं जहाँ पे इंसाफ मुयस्सर नहीं। मैं अपने दोस्तों से जो मेरे यहाँ भाई हैं, मेरे जजेस हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर इसको जॉब समझ के ना कीजिए। ये पैशन है, ये एक खिदमत है अपनी कौम की। तो ये वो जुडिशल एक्टिविज़म के जो बुनियाद रखी मैंने, वो नेक नीति पर मबनी थी और कभी मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं किसी की और डोमेन में इंटरफेयर करूं या मैं यूज़र्व करूं पावर को, या मैं उस बॉर्डर और उस लाइन को क्रॉस करूं जिससे ये कहा जाए कि जी जुडिशल एक्टिविज़म ये नहीं है, बल्कि ये एग्रेशन टू दी डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। मेरे से कई गलतियां हुई हों, दानिस्ता ना दानिस्ता, लेकिन मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूं कि उसमें बदनीयती का कभी अमल न करें। मैंने सख्ती की होगी, लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं किसी की तज़लील करना चाहता, बल्कि इस वजह से कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करता हूँ। कौमी असम्बली में मामूली अक्सरियत लेकिन सेनेट में अक़लियत। जी हाँ, कानून साजी तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। मामलात ऑर्डिनेंस के जरिए चलाने पर गौर शुरू कर दिया गया। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ये कहते हैं कि मफाद आमा के ऑर्डिनेंस जारी करने से अपोजिशन पर कानून साजी में ताउन के लिए दबाव आएगा। इस्लामाबाद से अदील बड़ाइश की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत कानून साजी में बेबस, मलबा अपोजिशन पर डाल दिया। हिज़्ब इख्तलाफ अवामी मफाद के कवानीन की राह में रुकावट करार। ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी पर गौर। अपोजिशन वाले बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। अल्लाह उनको अच्छा रखे, लेकिन बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे और अवाम देख ले आपके सामने है। मुझे लगता है यही है कि अपोजिशन हमारे ऐसे कवानीन को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उसको भी पास नहीं करेगी। दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम ज़रूर होगी, मगर अपोजिशन नैब को कमज़ोर करना चाहती है। अपोजिशन ये चाहती है कि नैब को थोड़ा वीक किया जाए और लेकिन उन कहा नहीं, इस तरह कहा नहीं है। कुछ चीज़ें उनकी दुरुस्त भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपोजिशन जो डिमांड कर रही है सारी चीज़ें गलत हैं। बाज़ चीज़ों में जहाँ जहाँ अब्यूज़ है उसको हमें देखना है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड है कि नैब बहुत एम्पावर हो और एक तरफ अपोजिशन का स्टैंड है कि नैब उतनी एम्पावर नहीं हो। मेरे ख़्याल में इनमें इसके साथ साथ अगर बैलेंस ये होना चाहिए कि जी नैब को वीक नहीं करना, लेकिन नैब का अब्यूज़ ख़त्म करना है। वज़ीर कानून का कहना था कि हुकूमत चाहती है नैब मामूली केसेस की बजाय सिर्फ मेगा करप्शन के मुकदमात को देखे। छोटे मुकदमात की तहकीकात एंटी करप्शन के महकमे को फ़ाल बनाकर की जाएं। कैमरामैन उस्मान एजाज के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि खिदमत खल्क फाउंडेशन के मातहत चलने वाला कोई इदारा बंद नहीं हुआ, अलबत्ता इंक्वायरी जरूर चल रही है। उन्होंने कहा कि वफादारियां तब्दील करने वालों ने KKF की कुछ अशिया फरोख्त की हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन KMC नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के मातहत इदारे कर रहे हैं। कोई
इदारा केफ के ज़ेर असर चलने वाला कोई भी बंद नहीं हुआ है, ना इंशाल्लाह होना है। एक इंक्वायरी हो रही है और उस इंक्वायरी के नतीजे में ये होता है कि स्टेटस को होता है, आप इसको ख़रीद फरोख्त नहीं कर सकते उसकी। हम भी हैदराबाद में बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। ये जो बहुत सारी जगहों पे घर गिरे हैं और दुकान गिराई है वो KMC ने नहीं गिराई है, KDA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इस तरह के बहुत सारे इदारे जो कराची के हैं उस पे सिंध गवर्नमेंट का कब्जा है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद आवाम के मसाइल हल करने के लिए किया, लेकिन अगर मामला जूं के तू रहे तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट PTI की हुकूमत, जिससे मैंने इशारा भी दिया कि हमारा एग्रीमेंट हुआ था ऑन इश्यूज़, कराची इश्यूज़, दिस इज़ वन ऑफ द इशू कि इतनी बड़ी आबादी को आप बेदखल कैसे करोगे। और उसी तरह पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, गैस का इशू है, बिजली का इशू है। जहाँ इश्यूज़ होंगे वहाँ हम फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे और हम हर हद तक जा सकते हैं। शामिल अगर आपका ये इशू भी नज़रअंदाज होता है दीगर आपके मुतालबात की तरह, तो क्या MKM PTI से अलग का गौर करती है? अगर इन इश्यूज़ पे अमल नहीं होता तो बिल्कुल मैं एज अ डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी में रखूँगा ये बात। राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे जाना है या नहीं जाना। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया है। इस कमीशन में 10 मेंबरान शामिल होंगे। असद उमर सरबरा मुकर्रर हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चारों सूबाई वज़राए खजाना भी कमीशन के रुकन होंगे, जबकि सेक्रेटरी खजाना भी इस कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ से डॉक्टर सलमान शाह, सिंध से असद सैयद कमीशन के मेंबर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल और बलूचिस्तान से महफूज अली खान इस कमीशन के रुकन होंगे। तो सदर मुमलिकत की जानिब से ये कमीशन तश्कील दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि असद उमर इसके सरबराह हैं। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चारों सूबाई वज़राए खजाना भी इस कमीशन के रुकन होंगे। पंजाब से डॉक्टर सलमान शाह, सिंध से असद सैयद, बलूचिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ से महफूज अली खान और खैबर पख्तूनख्वा से मुशर्रफ रसूल इसके रुकन होंगे। सेक्रेटरी खजाना भी कमीशन के मेंबर होंगे। खबर दें आपको कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कराची का कारोबारी तबका अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल से फ़ायदा उठाए। अमन के फ़वायद मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आने चाहिए। ताजिर बिरादरी ने मुलाकात में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कराची, बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की सफ़ह सलार से मुलाकात, कराची में अमन की बहाली पर पाक फौज की कोशिशों की तारीफ। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि कराची के अमन की बहाली में कारोबारी बिरादरी का किरदार अहम है। कारोबारी तबका शहर में अमन का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम में अपना हिस्सा डाले। इस मौका पर कारोबारी अफराद के वफ्द ने शहर में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि वो मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में तैनात नए अफगान सफीर शाकिरुल्लाह की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इलाके की सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने अफगान सफीर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा और जनरल बाजवा ने दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद का भी इजहार किया है। खबर दें आपको कि कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाव का कहना है कि दहशतगर्दी इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में इस्तेहकाम से मुंसलिक है। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान वफ्द ने कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब खान शेरपाव से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शहरियों को बदअमनी का सामना है। अमन मुज़ाकरात हर सूरत जारी रहने चाहिए। उन्होंने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों के लिए किरदार अदा करेंगे। आपको खबर दें कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू के तलबा और असातिज़ा ने ISPR का दौरा किया। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। DG ISPR ने गुफ्तगू में कहा कि तलबा मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से भरपूर आगाही हासिल करें। उन्होंने 5th जनरेशन वॉर के खिलाफ नौजवानों के किरदार को सराहा और कहा कि नौजवान सोशल मीडिया पर दुश्मन कुव्वतों के हरबों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
वफ़द ने मुल्क बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.